Hare Krishna. Hare Krishna. So, very warm welcome to all the devotees for this very auspicious deity welcoming ceremony. आपको शायद पता होगा या ना होगा, लेकिन सरकार बदल गई है। आपको पता पड़ा कि नहीं? इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, आपको पता नहीं पड़ा? कितने मग्न हो आप ये प्रोग्राम में? मोदी सरकार बदल गई है। मोदी के घर पे सरकार बदल मोदी के घर पे सरकार बदल गई है। प्रभु जी बढ़ते जो बाकी सब लोग एकदम टेंस हो गए यार, मोदी सरकार बदल गई है। तो कौन सी सरकार आई है इधर? जगन्नाथ लाडली सरकार आ गई है। बोलो लाडली सरकार की। So Rajiv Modi, you have been missing. He's missing. वो तो चले गए, अभी इसका क्या है? सरकार जो बदल गई એ બધા બ્રહ્મચારીને સૌ કરવા માંગ્યો છે. It's a tense moment when એ તો સચિનનો બહુ શોખ છે. So we are very grateful to have with us His Grace Nandulal Prabhu. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नंदलाल प्रभु जी इधर क्यों है। सरकार बदल गई है, इसके लिए he is a representative of the new government. So he's come to take charge. I hope I do justice to your words. So एक दिन हम गोवर्धन में थे और प्रभु जी आए और हमने प्रभु जी को देखा। मैं राजीव के साथ खड़ा था एंड जैसे उन्होंने हमको देखा, he had a big smile on his face and उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया, फैलाया और मैं उनके तरफ चलते गया। सोचा मैं उनको हग करूं, लेकिन मेरे पहले राजीव आ गया and they hugged each other so sweetly. And that day I realized the relationship they share with each other. And that is the reason I think Prabhuji is over here, because of the friendship he shares with the Modi family. He's an In angel. today's times, you can't go against the Modis. प्रभुजी अभी आपकी सरकार है। Better alive. So Prabhuji is an engineer, and while he was doing his engineering, he met the supreme engineer who engineers our life. So he got inspired and he worked for 5 years in an IT company, and then he joined in 2005 Shri Shri Radha Gopinath Temple. So he's active, very active in preaching. He's developed a very good congregation in Baramati, very active in preaching to the youth. It's part of the management of our temple, and very, very grateful that he's present over here to bring, to commence another roadmap of spiritual growth in the Modi's family. So with these words, I'd like to welcome him in our traditional way by warmly chanting Hari Bol. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobisham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvayatam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Arata Taptakapshana Navaprangi Age Vrindavaneshwari Vishnu Sule Devi Yuge Vancha Kalpataru Sindhu Ayayevacha
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीपदे भक्तिवेदांत स्वामीनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। विज्ञान मतलब उसको गिन सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। और इस क्षण के पहले भक्ति was immeasurable. भक्ति was you cannot quantify it. हर कोई भक्ति था। तो रूप गोस्वामी ने ये सब करते करते 64 अंग लिखे हैं भक्ति के। तो उसमें पहले उन्होंने 59 लिखे, 59। उसमें क्या क्या है? कीर्तन में ताली बजाना चाहिए, तुलसी देवी को पानी देना चाहिए, तुलसी देवी को प्रदक्षिणा करना चाहिए, भगवान का जब दर्शन लेते हैं तो पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने लिखी है। तो पहले 59 लिखे हैं और 59 के बाद में अभी लास्ट 5 उनको लिखना है। तो उस समय बोलते हैं साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। 5 चीजें बताई उन्होंने। सबसे पहले बताया साधु संग, तो वैष्णव का संग कीजिए। साधु संग मतलब ये नहीं कि जो सैफरन कपड़े पहने वो साधु संग। साधु जैसे तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहि नाम है ना। प्रहलाद बोलते हैं मैं साधु समझता हूँ। किस चीज को साधु समझता हूँ? मतलब मैं अच्छी चीज समझता हूँ। तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्रिंग दिया मसदा। तो मैं सबसे अच्छी चीज क्या समझता हूँ कि कृष्ण को शरण जाना चाहिए। तो साधु इज नॉट सैफरन। साधु मतलब कुछ भी अच्छी चीज को साधु बोलते हैं। शास्त्रों में कई बार आएगा जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है, बोले साधु साधु बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया, लाइक सो बोलते हैं साधु संग मतलब भक्तों का संग करना चाहिए। सेकंड नाम कीर्तन, थर्ड भागवत श्रवण, फोर्थ तीर्थ स्थान में वास करना चाहिए, मथुरा वास, और 5वीं चीज बोलते हैं श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन। तो हम जिसको 2 शब्दों में समेट लेते हैं, हम बोलते हैं मूर्ति पूजा, डिटी वर्शिप। उसको श्री रूप गोस्वामी हाउ इज ही यूजिंग इट? श्री मूर्ति, इट्स नॉट ऑर्डिनरी मूर्ति। तो पहले ना उसमें रिस्पेक्ट है कि ये भगवान के रूप से अभिन्न है। श्री मूर्ति सेवन नहीं, श्रद्धा एक सेवन। तो अगर हम मूर्ति की सेवा श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं, प्रतिमा ना ये साक्षात तो भी ब्रजेंद्र नंदन, मतलब हम सोच रहे हैं कि ये धातु की मूर्ति है, ये लकड़ी की मूर्ति है, संगमरमर की मूर्ति है, कुछ भी मूर्ति है, तो देन वी हैव नॉट येट स्टार्टेड। एक बार कुछ भक्त मायापुर मंदिर में पहुंचे और वहां पे धातु की 5 मूर्तियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पंचतत्व। तो उनको देख के वहां पे जनानिवास प्रभु खड़े थे, हेड पुजारी। तो जनानिवास प्रभु को बोल रहे हैं क्या ये सच में व्यक्ति है क्या कि आप लोग मेटल की पूजा कर रहे हैं, धातु की पूजा कर रहे हैं? तो जनानिवास प्रभु ने एक बहुत अच्छा एक सवाल पूछा उनको। बोले पहले आप ये बताइए, जो ये सवाल पूछ रहा है कि ये व्यक्ति है कि धातु है, पहले आप ये बताइए आप कौन है? क्या आप ये हड्डी है क्या आप ये जो स्किन बोन्स ब्लड इसके है क्या आप? तो ही वॉज अबाउट कंफ्यूज्ड। तो ही सेड एक दिन जब आपको पता चलेगा कि आप ये मांस हड्डी खून से नहीं बने हैं, आप सच्चिदानंद है, उस दिन आप ये जो सच्चिदानंद घन है ये ओरिजिनल सच्चिदानंद है। क्योंकि ये सच्चिदानंद है इसलिए हम सच्चिदानंद है। सो हम खुद को ही अभी तक पहचान नहीं पाए कि हम कौन है, हम हमारे स्रोत को कैसे पहचानेंगे। सो जनानिवास प्रभु ने बोला आज जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये व्यक्ति है क्या, तो पहले आप ये जानिए कि आप कौन है। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन है, हम कैसे जानेंगे भगवान? इसलिए श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन, कि हमारे गुरुजन जब हमको बताते हैं कि ये जो मूर्ति है ये धातु से नहीं बनी है, ये जो मूर्ति है पत्थर से नहीं बनी है, ये साक्षात भगवान है। अगर भगवान की सारी सृष्टि है तो उस सृष्टि में कोई भी एक चीज में भगवान खुद आ सकते हैं ना, यू कैन इजीली डू इट, तो व्हाई नॉट, राइट? तो कभी
एक जमाने में भारत में तो ये बहुत श्रद्धा थी, मूर्ति को देख के सबसे पहले तो प्रणाम करते थे। लेकिन अंग्रेज लोगों ने हमको क्या बताया, गॉड इज एवरीवेयर। तो हम लोग सबने बोला यस गॉड इज एवरीवेयर। सो इफ गॉड इज एवरीवेयर देन व्हाई इज देयर ए नीड टू गो टू द टेम्पल? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन उस समय अगर हम होते तो हम बोलते कि गॉड इज एवरीवेयर, यस, सो इफ इज एवरीवेयर देन इज इन द टेम्पल ऑल्सो। So what is the problem when the Britishers are saying God is everywhere, what is the need to go to the temple? What they are saying is God is everywhere except the temple. और हमने सुन लिया और हमें स्वीकार कर लिया, भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर में है ना, तो अगर हम मंदिर में जाए तो प्रॉब्लम। तो हमको ऐसे सिखाया, अरे आप लोग तो बोलते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो अगर भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? और बहुत सारे हम जो इंटेलिजेंट लोग हैं, हम ये we don't need to go to temple. So गाय में दूध है कि नहीं, right? But can you take the milk from anywhere else? उसकी एक जगह है, उधर से अगर दूध निकालेंगे तो दूध निकलता है, और कहीं से दूध निकालने जाएंगे तो खून निकलता है। सो भगवान ने कैसे अरेंजमेंट किया है, अगर गाय का दूध चाहिए तो एक स्पेसिफिक जगह है, वहां से निकालेंगे तो दूध निकालेंगे, और कहीं हम अपने हिसाब से बोलेंगे गाय है, दूध है, और कहीं और निकालेंगे तो खून निकलेगा। सो देखो, एक जगह से निकालेंगे तो दूध निकलता है, एक जगह से निकले तो खून निकलता है, कितना गलत है। तो वैसे भगवान सर्वव्यापी है। फोन है आपका, फोन, सो फोन के वाइब्रेशन सब जगह पे है, बट अगर मुझे बात करनी है तो कहना जस्ट हेलो राजीव, मेरा टॉप लाइक दिस, तो the vibrations are everywhere is, but they can be captured in a specific place, and when they're captured in a specific place I can utilize them and I can talk, otherwise it won't work. तो वैसे ही फोन भी, हालांकि वाइब्रेशन सब जगह है लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पे फोन होता है। वैसे गाय में अगर दूध चाहिए तो एक स्पेसिफिक जगह पे है। वैसे सर्वव्यापी भगवान से अगर रिश्ता जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पूर्व आचार्यों ने हमको कहा है मंदिर में एक मूर्ति होनी चाहिए, और वो मूर्ति को देखना हमारे लिए आसान है, हमको उस मूर्ति को कपड़े पहनाना बहुत आसान है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, इफ कृष्णा कम्स इन द फॉर्म ऑफ विराट रूप इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ विल यू ड्रेस इट? ना आदि ना अंत ना मध्य, यू नो 11th चैप्टर अर्जुन इज सेइंग, शुरू कहाँ से अंत कहाँ से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा आकाश में सिर्फ कृष्ण ही थे, तो बोले वो अगर विराट रूप आपके सामने आएगा और आपको बोलना है कि मुझे ड्रेसिंग करना है इनको, कैसे कौन सी धोती पहन इनको भोग खिला रहे, तो कहा ऐसे भोग नहीं, ऐसे कैसे भोग दिखाएंगे? सो कृष्णाज काइंडनेस जो सर्वव्यापी है, जो खम्भे में से बाहर निकले, वो आपकी सुविधा हो, फॉर योर बेनिफिट ही इज कमिंग इन अ स्मॉल लिटिल फॉर्म। तो हमेशा रूप गोस्वामी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन, और फिर उसके आगे लिखते हैं सर्व साधना श्रेष्ठ यही 5 अंग। 59 बताए, 59 के बाद में ये 5 बताए, तो सर्व साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही 5 अल्प संग। अगर किसी को कृष्ण प्रेम को जन्म देना है तो ये 5 में से कुछ भी एक करेंगे, अल्प संग। तो अगर कोई जस्ट वो मूर्ति पूजा, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन को अच्छे से अगर करेगा तो रूप गोस्वामी का आशीर्वाद है, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जन्मेगा। तो सोचो कितना बड़ा आशीर्वाद है। बट उसके लिए एक जस्ट छोटी सी चीज करनी है कि ये जो मूर्ति है ये धातु की नहीं है, ये जो मूर्ति है ये पत्थर की नहीं है, ये भगवान साक्षात है, मेरे घर में आए हैं। अगर कोई, प्रभु जी बता रहे थे, एक बड़े व्यक्ति के बारे में बता रहे थे, मोदी के बारे में बता रहे थे तो अगर मोदी के घर में, राजीव मोदी के घर में, you know the other big Modi, नरेंद्र मोदी, he comes, so he is a PM, भारत के PM है, और उनके पास कितने बॉडीगार्ड्स हैं? अनलिमिटेड बॉडीगार्ड्स हैं। उनके पास न्यूट्रिशनिस्ट कितने हैं? बहुत है। उनके पास कुक कितने हैं? बहुत है। लेकिन अगर हमने उनको घर पे बुलाया तो क्या वो अपना खाना लेके आएंगे कि हमको बोलेंगे आज हम आपके घर पे आए तो आपकी जिम्मेदारी है अभी खाना खिला? व्हाट डू यू फील? राइट, इफ यू सिटिंग देयर और हमने फैन नहीं लगाया, एसी नहीं लगाया, तो ही हैज अ बिग होम एंड बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, किसी को इंडिकेट करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा यहाँ पे, राइट? बट वेन ही कम्स, हमारे घर पे जब आते हैं ना तो चुप बैठे रहेंगे वो, राइट? हमको उनको पानी खिलाना है, हमको एसी लगाना है, हमको उनको पूछना है इज दिस चेयर ओके फॉर यू और इज इट टू टॉल, इज दिस टू शॉर्ट, राइट? तो ही कैन अरेंज फॉर एवरीथिंग, ही इज ऑलरेडी अरेंजिंग फॉर द होल कंट्री।
पूरे देश का देखभाल कौन करे, कौन से डिसीजंस कहाँ लेने क्या करें वो एक व्यक्ति ले रहा है। लेकिन जब हमारे घर में आएंगे तो उनको पानी चाहिए, पंखा चाहिए, क्या चाहिए, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो सोचो भगवान जब हमारे घर पे आते हैं और हम तो प्रेम से बुला रहे हैं, मोदी जी तो कोई फंक्शन में वगैरह आएंगे तो भी वी हैव टू टेक केयर। ही वोंट से अरे मैं तो मोदी हूँ, मैं तो पूरे जग को खिला रहा हूँ, तुम क्या खिलाओगे मुझे, राइट। सो वैसे ही अगर भगवान हमारे घर पे आएंगे तो गतिर भरता प्रभु साक्षी, कृष्णा से जिंदगी था, मैं सबका भरता हूँ, मैं सबका पालन पोषण करता हूँ, सबको खाना खिलाने वाला मैं हूँ। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक व्यक्ति है जो सबको खाना खिला रहा है, लेकिन वो एक व्यक्ति जो सबको खाना खिला रहा है जब हमारे घर में आते हैं तो उनको खाना कौन खिलाएगा? माता जी। राइट। वो सबको पानी पिला रहे हैं लेकिन उनको पानी कौन पिलाएगा? हम पिलाएंगे। वो सबको कपड़े पहना रहे हैं लेकिन हम उनको कौन कपड़े पहनाएंगे? हम। सो जब ये रिश्ता आएगा देन ओनली डीटी वर्शिप इज पॉसिबल। श्री मूर्ति श्रद्धा है सेवन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक है कि ये भगवान नहीं मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं इनको खाना नहीं खिलाऊंगी तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अपना खाना खुद कर लेंगे, नहीं, ये भूखे रहेंगे। अगर ठंड के दिनों में मैंने इनको अच्छे वस्त्र नहीं पहनाए, ऊब देने वाले, गर्मी देने वाले, ये ठंड लगेगी इनको। तो ये भावना होनी चाहिए मूर्ति पूजा की, और इस भावना से रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर हम करेंगे तो जरूर हमको एक दिन भगवान से स्ट्रांग हो जाएगा कि हम उनको भूल नहीं पाएंगे। एंड दैट इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। तो हमारे आचार्यों ने हमारे ऊपर अनुकंपा करके विशेष से ये हमको एक भाव दिया है। और आज हनुमान जी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग कह रहे थे कि भगवान को जब हमारे घर में लाते हैं तो हमको सेवा करनी चाहिए, है ना। तो एक थोड़ा कहीं तो उसमें वो दास्य रस है, एक्चुअली बोलते हैं वात्सल्य रस है, लेकिन कुछ कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो मैं उनको समय समय पे उनका अच्छा देखभाल करना चाहिए, राइट। सो हनुमान जी इज कंसिडर्ड टू बी द एग्जाम्पल ऑफ दास्य रस। भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए अगर सीखना है तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी का अकेला अगर फोटो होगा तो हनुमान जी कैसे दिखते हैं अकेले फोटो में? हनुमान जी अलोन कैसे दिखते हैं? ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे एकदम स्ट्रॉन्ग, राइट, ही शोइंग हिज मसल्स और उनकी ताकत दिखाते हैं। और जब राम दरबार में रहते हैं तब सीता राम लक्ष्मण के साथ में रहते तो कभी खड़े नहीं रहते, इज नेवर स्टैंडिंग, ऑलवेज, राइट, चरणों में रहेंगे, एकदम ऐसे झुक के रहेंगे, ऐसे भी नहीं कि केवल ऐसे सीधे बैठे हैं, एकदम गर्दन झुका के हाथ जोड़ के रहेंगे, राइट। तो एक तरफ उनके पास अमाप शक्ति है, लेकिन दूसरा एक तरफ अमाप उनके पास इमेजरेबल सर्विस एटीट्यूड है। तो मालिक के सामने वो जो दासत्व है उनका, वो कैसे दिखाता है? ही इज नॉट जस्ट सेइंग मेरे हृदय में दासत्व है, अरे आपको क्या मालूम, इन माई हार्ट आई एम ए सर्वेंट, लेकिन मैं सामने तो अच्छे से बैठूंगा। इट जस्ट पोर्स आउट। लोग दूध को जब उबालते तो कैसे उफन के बाहर आता है, वैसे उनका जो दासत्व है वो ऐसे खड़े थे। अभी राम जी आएंगे एकदम नीचे बैठेंगे। सो स्वीट स्टोरी आप सबको पता होगी कि दासत्व के बारे में चर्चा करते हैं तो एक सेवा के बारे में चर्चा करते हैं ना। तो हनुमान जी ने रामायण के युद्ध में बहुत सारी सेवा की। एक बृहद भागवतामृत है, बृहद भागवतामृत में बहुत सुंदर एक श्लोक है कि हनुमान जी ने राम जी के लिए क्या क्या किया। तो बोलते कभी उनके वाहन बने, राम और लक्ष्मण ऐसे कंधे पे बैठे थे उनके, कभी उनके लिए छतरी बने। तो बोलते हैं हनुमान जी की जो पूंछ थी उसके एंड में बाल रहते हैं, राइट। तो हनुमान जी कभी कभी रामायण के युद्ध में जब धूप होती थी बहुत, तो हनुमान जी को बुरा लगता था कि इतनी धूप हो रही है, राम और लक्ष्मण की, तो पास में चले जाते थे और ऐसी पूंछ को ऐसे खड़ा करते थे और उसके एंड में जो बाल होते उसको ऐसे स्प्रेड करते थे तो ऐसे छाता बन जाता था उसका। सो नारद मुनि इज ग्लोरीफाइंग हनुमान जी। फिर कभी बोलते हैं समटाइम यू एक्ट एज अ फ्लैग ऑफ राम, कि पूरी सेना अभी वानरों की सेना है, तो कभी कभी मालूम है लीडर नहीं दिखते हैं युद्ध में, तो कभी कभी थोड़ा लगता है कि क्या लीडर है नहीं है करके। तो कभी कभी वानर लोग थोड़े डर जाते थे, बेचारे थे छोटे सिंपल से वानर थे और ये बड़े बड़े राक्षस थे, तो कभी कभी डर जाते थे। तो राम जी कहाँ है कि नहीं, राम जी अगर है तो हम लोग युद्ध करेंगे, दैट वाज देयर होल होप। तो कैसे समझेगा राम जी है कि नहीं? तो हनुमान जी की सफेद पूंछ ऐसे फ्लैग, उनका ध्वजा थी, तो अरे वो ध्वजा है मतलब राम जी है तो चलो लड़ो। फिर ऐसे पत्थर लेके मारते थे वगैरह। तो ये राक्षस लोग तो बड़े बड़े शस्त्र लेके आए थे, तो ये वानर लोग कैसे मारेंगे? पत्थर लेते थे, क्योंकि
पेड़ से आम तोड़ने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस था उनको तो पत्थर लेके आंख फोड़ देते थे। तो इतना बड़ा राक्षस है, बहुत बड़े बड़े शस्त्र हैं, लेकिन आंख फोड़ देंगे तो क्या करेंगे? या फिर कभी कोई वानर ऐसे चढ़ जाएगा, ऐसे छोटा सा राक्षस के तुलना में ऐसे चढ़ जाएगा और नाक के अंदर चला जाएगा, राइट? You're getting irritated, कान में चला जाएगा, इधर कुछ तो करेगा, तो ना राक्षस इज गेटिंग इरिटेटेड एंड देन दे विल समहाउ ब्लाइंड हिम। ऐसे करके उन्होंने करा, लेकिन कई बार राम है क्या ये देखने के लिए वहां पे ध्वजा चाहिए थी, तो वो कौन थी? हनुमान जी की पूंछ थी। तो हनुमान जी ने क्या क्या सेवा नहीं की है। और ये हनुमान जी जब युद्ध समाप्त हुआ तो अयोध्या पहुंचे, अभी उनका कोरोनेशन है, राम जी के अभी राजा बनने वाले हैं वो। तो भरत महाराज इज ऑल्सो अनदर एम्बलेम ऑफ सर्विट्यूड, सेवा करेंगे, राइट? तो 14 साल रुके हुए थे, राम जी कब आएंगे? और राम जी को उन्होंने चित्रकूट में बताया था, एक क्षण भी आपने लेट किया मैं खुद को आग में प्रवेश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी दिस 14 years इज फायर फॉर मी। आपने बोला है द लॉन्ग कन्वर्सेशन इन चित्रकूट, पर आपने बोला इसलिए मैं कर रहा हूं, तो ऑलरेडी टू सिट एंड रूल एज ए किंग इज इटसेल्फ फायर फॉर मी। तो दैट फायर इज लेसर फॉर मी, दिस फायर इज मोर स्ट्रॉन्गर फॉर मी। 14 साल, तो अगर आपने लेट किया तो मैं तो खत्म कर दूंगा, राइट? तो ही इज ऑलरेडी लिविंग इन दैट सर्वेंट मोड। अभी राम जी आए, उनका मुंडन हुआ, जटाएं थी उनकी 14 साल की, तो मुंडन हुआ, पूरा फ्रेश शेविंग हुआ उनका, सब सागर समुद्र में से पानी लाया, पवित्र पानी लाया, उनका अभिषेक हुआ, वो सब हुआ, राइट? तो हु इज प्लानिंग इट? ये कौन सी जगह है? अयोध्या। सो हु विल प्लान इट? भरत। Why? Because 14 years he has been waiting for it, right? And somebody like Bharat, when he plans na, he actually plans it very nice. तो ये सेवा कौन करेंगे? ये करेंगे। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेंगे? ये करेंगे। माइक्रोफोन कौन लगाएगा? Everything is planned. और जैसे कभी 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 ऐसे किसी घर में प्रोग्राम होता है तो एक शेड्यूल लगता है ना, 4 बजे ये सेवा होनी चाहिए, 4:30 बजे ये सब, तो ऐसे पूरा शेड्यूल लगाया, कौन करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा। और हनुमान जी ने अयोध्या पहुंचने पहले तक, हु हैज डन द मैक्सिमम सर्विस फॉर राम लास्ट 14 years ऑलमोस्ट? हनुमान जी, राइट? सो दैट हनुमान जी इज सो ईगर। वो भी दासत्व है, भरत जी भी दासत्व है, और अभी हनुमान जी जो लिस्ट लगी है अयोध्या के महल की दीवार पे लगी है, तुम्हारी क्या सेवा है, इसकी लक्ष्मण की क्या सेवा है, सबकी क्या सेवा है। तो देखते हैं, फर्स्ट नेम नहीं है मेरा, सेकेंड थर्ड, पूरी लिस्ट देखी, उसमें हनुमान जी का नाम ही नहीं था, बिकॉज नाउ इट इज अयोध्या, और अयोध्या में 14 साल से लोग रुके हुए हैं राम जी की सेवा करने के लिए। तो मेरा नाम डालो, मेरा नाम डालो, तो अभी किष्किंधा वालों का नाम नहीं है उसमें, ऐसे रहता ना जो सर्विस इंचार्ज है वो डालेगा ना नाम उधर, राइट? सो हनुमान जी इसलिए कह रहे मेरे तो नाम ही नहीं, अभी क्या करूं मैं? बट दास्य रस विल नॉट गो, दैट्स द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग। अंदर अगर दास ने उफन के वो बाहर आता है, सो व्हाट विल डू ही डू? तो क्या करते हैं, चुपके से राम सीता लक्ष्मण का जो ये अभिषेक वगैरह चल रहा है, और वो पूरी एक फंक्शन चल रहा है, बाजू में जाके खड़े हो जाते हैं। तो एवरीवन इज वर्ल्डिंग, सेवा तो कुछ है नहीं इनके लिए सेवा तो कुछ है नहीं, तो ये क्या कर रहे हैं करके। तो बहुत समय तक खड़ा रहने के बाद में somebody goes and asks him, भैया तुम्हारी सेवा तो कुछ है नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले क्या है ना, मैंने एक देखा है कि ऐसे मुकुट पहनाना, अभिषेक करना, उधर स्तवन चलते रहता है, नए नए मंत्र वगैरह, तो ये सब लंबा चलता है, राइट? समटाइम्स इन वेडिंग्स एंड ऑल यू सी ना इट्स गेटिंग स्ट्रेच्ड, राइट? तो बोले ये सब लंबा चलने वाला है, अगर गलती से राम जी को ये लंबा चल रहा है, उबासी आ गई, तो मैं चुटकी बजाऊंगा। So I have taken the चुटकी सेवा. So nobody thought of this चुटकी सेवा, but Hanuman ji is so much in servant mode. He said, गलती से अगर उबासी आ गई तो immediately मैं चुटकी बजाऊंगा. So this is Hanuman ji, right? So Hanuman ji, a very beautiful shloka in Padma Puran, he says that भवा बंध छिदे यस्य स्पृहा यामी न मुक्तये, बोलते हैं भावा बंधन जिसमें छूट जाता है उस मुक्ति, स्पृह यामी न मुक्तये, भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलोप्यते, कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, ये जो भावना है अगर उस मुक्ति में छीन जाती है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैं केवल एक ही चीज की कामना करता हूं, भवान प्रभु वयम अहम दास, आप मेरे प्रभु हैं जन्म जन्म तक। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हमको कहना है कि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहा है, तो हनुमान जी बोल रहे हैं
कि मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुक्ति में स्वामी और दास का नाता छूट जाता। तो आज हम हनुमान जी को उनके जन्मदिन के अवसर पे प्रार्थना कर सकते हैं, हनुमान जी जिस तरह से आप हमेशा नई नई सेवा सोचते रहते हैं, और अगर आपको सेवा दी भी नहीं तो आप पूरा नहीं मानते हैं, आप सोचते हैं नहीं नहीं वो एक सेवा इन्होंने सोची ही नहीं, वो मैं करूंगा करके। तो वैसे हमको हमारे पूरे जीवन भर हमारे घर में जिस रूप में भगवान आए हैं उनकी सेवा करने का मौका दीजिए करके। तो हनुमान जी हमको ये सिखा रहे हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक श्लोक है शास्त्रों में कि वैष्णव जाति बुद्धि, कि वैष्णव की कोई जाति नहीं होती। वैष्णव को हम ऐसे सोचना नहीं चाहिए कि ये ऊंची जात का है। वैष्णव भगवान के ऊपर आधारित जीवन जी रहा है। तो उसमें ये वैष्णव जाति बुद्धि के लिए बोलते हैं, देखो कि हनुमान जी तो वानर है, वानरों को थोड़ी ना अच्छी नजर से देखा जाता है। वानर मतलब हमेशा कुछ तो गड़बड़ करेंगे, कुछ नुकसान करेंगे। तो बोला इफ वी लुक एट हनुमान जी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव देन वी विल मेक एन ऑफेंस। तो वैष्णव जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, नारकी मती है वो। तो बोलता है कि हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं देखो मेरे से ना बहुत सारी सेवा करवा लो, आप बड़े बड़े पत्थर उठवा लो, जो करना है करवा लो। तो वैसे हमको बोलते हैं प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बहुत सुंदर बता, यद करोषि यद अश्नासी, कि आपसे जो भी बन पड़ता है आप कृष्ण के लिए कीजिए। कोई अच्छे से गा सकता है तो कृष्ण के लिए गाइए, कोई बोल सकता है तो कृष्ण के लिए बोलिए, कोई अच्छे से डांस कर सकता है तो कृष्ण के लिए डांस कीजिए, कुकिंग कर सकते हैं तो कृष्ण के लिए कीजिए। लेकिन हमेशा एक भावना होनी चाहिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए मैं क्या अपने जीवन में करूं। सो दिस इज द सक्सेस ऑफ लाइफ। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि ये हनुमान जी इन जगन्नाथपुरी, तो कम से कम 11 या 12 हनुमान जी है वहां पे। उसमें से 8 जो है ये प्रमुख माने जाते हैं। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा कि हनुमान जी को जगन्नाथपुरी में क्या स्थान है। तो सबसे पहले एक बारगी हनुमान है। तो कहते हैं 18वें 18 सेंचुरी में महाराष्ट्र से कुछ लोग थे जिनका नाम था बारगी। वो कभी कभी ओडिशा तक जाते थे और वहां थोड़ी लूटपाट करते थे। तो लोग समझते थे कि भाई इनसे कैसे बचना चाहिए करके रेगुलरली आते थे, पूरी में भी आते थे। तो उन्होंने कहीं से तो सुना कि जो बारगी लोग हैं ये हनुमान जी को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने ये लोकनाथ रोड है जगन्नाथपुरी के पश्चिम की तरफ, वहां पे उन्होंने हनुमान जी की स्थापना की। और जैसे ही ये लोग अगली बार जब पहुंचे तो देखा हनुमान जी है यहाँ पे, तो हनुमान जी के स्मरण तो चुप। तो इसलिए उन्होंने फिर जगन्नाथ मंदिर के पास में गए नहीं और वहीं से लौट गए। तो ये जो बारगी हनुमान है ये जगन्नाथपुरी को सिक्योर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरे माता जी ने कहा बेड़ी हनुमान। तो बेड़ी हनुमान की भी बहुत अच्छी स्टोरी है कि जगन्नाथपुरी ये समुद्र के तट पे है। तो उनकी जो लहरें हैं वो कभी अंदर नहीं आनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक अरेंजमेंट कर दी जगन्नाथ जी को। तो जगन्नाथ जी ने हनुमान को बोला आप यहीं पे रुकना, एक जगह है एकदम समुद्र के पास में, बोला आपको यहाँ से जाना नहीं है और यू शुड प्रोटेक्ट जगन्नाथपुरी। अभी जगन्नाथ जी की जो स्टोरी है इंद्रदुम्न महाराज की, गुंडीचा रानी की, वो सत्य युग की है। तो उसके बाद में त्रेता युग हुआ। तो हनुमान जी को उन्होंने वहां रखा। लेकिन जब राम जी आए त्रेता युग में तो हनुमान जी को पता चला कि राम जी की सेवा में मुझे जाना है, तो राम जी सेवा छोड़ के चले गए। पुरी से हनुमान जी राम जी की सेवा करने चले गए। तो राम जी की सेवा करने के बाद मेरे वापस आए तो जगन्नाथ जी बोले देखो एक बार अभी गए, अभी वापस नहीं जाना है तुमको। तो इसलिए वहां से उनको एक चेन से उन्होंने बांध दिया। तो आज भी हम जब जाते हैं तो बेड़ी हनुमान जो मंदिर है वहां पे उनको चेन से बांधा है। और चेन पे एक एक जो लिंक है जो ऐसे फंसी रहती है दूसरे में चेन में, तो हर एक के ऊपर राम का नाम लिखा है। तो हनुमान जी को बांधना इतना आसान नहीं है। हनुमान जी को बांधना है तो राम नाम लगेगा आपको। तो राम लिख के हनुमान जी को बांध दिया। तो ऐसे कहते हैं 1999 में ओडिशा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था और उस साइक्लोन के समय पे समुद्र से 30 किलोमीटर अंदर तक पानी चला गया था। इतना समुद्र से पानी, इतना फोर्स में 30 किलोमीटर इनसाइड and 15 lakh homes were destroyed in 1919 cyclone। और एक पारादीप करके पोर्ट है ओडिशा में that got completely destroyed by this cyclone, but this cyclone could not cross Bedi Hanuman temple which is maybe 10 meters from the beach।
जैसे हमारी बिल्डिंग के बीच से कितनी दूर है वैसे बेडी हनुमान, तो 30 किलोमीटर तक अलग अलग जगह पे अंदर चले गए पानी, लेकिन जगन्नाथपुरी वॉज नॉट टच बिकॉज ऑफ दिस बेडी हनुमान। सो बेडी हनुमान इज स्टिल देयर। कभी हम लोग जाएंगे तो उनका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये दरिया बोलते हैं ना हिंदी में, सो उनको कभी कभी दरिया महावीर बोलते हैं। हनुमान जी को तो महावीर बोलते हैं, तो दरिया महावीर बोलते हैं क्योंकि पास पे है ऐसा। फिर और एक हनुमान जी है जिनका नाम है वीर विक्रम हनुमान जी। इनको कभी कभी संकट मोचन हनुमान जी भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली जगन्नाथपुरी के जो एक पश्चिम ने लेफ्ट साइड में बाई तरफ एक गेट है, टाइगर गेट बोलते हैं उसको, वहां से जो सीढ़ियां आती है वहां पे है, और एक योद्धा के रूप में है, तो जगन्नाथ जी का मंदिर का केयर कर रहे हैं। तो 4 हनुमान जी है जो मंदिर का केयर करते हैं, और बाकी सब हनुमान है और जगन्नाथपुरी शहर को उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा। तो ये पहले है उसमें। फिर चौथे हैं, इनका नाम है ब्रह्म जगह हनुमान। तो जगन्नाथपुरी में एक नरेंद्र सरोवर है, नरेंद्र सरोवर के पास में इनको, नरेंद्र सरोवर में बहुत सारी भगवान की लीलाएं वगैरह भी होती है, भगवान को जब वहां लेके आते हैं तो नरेंद्र सरोवर के प्रोटेक्शन के लिए वहां भी इनको रखा है। और जब चंदन यात्रा होती है धूप के सीजन में, तो कई बार इनको बोट फेस्टिवल के लिए भगवान को लेके आता है। तो हमारे जो जगन्नाथ जी है इनकी उत्सव मूर्ति है। जैसे राधा गोपीनाथ मंदिर में आप आएंगे तो राधा गोपीनाथ जी बड़े हैं, बड़े राधा गोपीचंद वल्लभ है, छोटी मूर्ति है। तो छोटी मूर्ति एक जमाने में हम लोग बाणगंगा में बोट फेस्टिवल करते थे, आपने देखा है कभी? सो नरेंद्र सरोवर में बोट फेस्टिवल होता है, तो उनका नाम है मदन मोहन। जगन्नाथ जी के जो उत्सव मूर्ति है उनका नाम है मदन मोहन। तो मदन मोहन जी और नरेंद्र सरोवर में बोट फेस्टिवल करते हैं चंदन यात्रा के समय पे। तो उनका सब प्रोटेक्शन के लिए ये ब्रह्म जगह हनुमान जी हैं। फिर एक है कान फाटा हनुमान। तो ये कान फाटा हनुमान क्या है? ये दक्षिण दिशा में मंदिर का जो गेट है वहां पे उनको रखा है। तो जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी से विवाह किया है, और लक्ष्मी देवी कहाँ से उत्पन्न हुई? समुद्र बंधन से। तो समुद्र जी जगन्नाथ जी के ससुर है, राइट? तो जब जगन्नाथ जी रात को आराम किए एक बार, तो समुद्र का लहरों की आवाज अंदर आ रही थी, तो जगन्नाथ जी को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। अभी ससुर जी को ज्यादा बोल नहीं सकते, राइट? सो देन ही केप्ट हनुमान जी देयर। हनुमान जी को बोला, देखो हनुमान जी ध्यान लगा के सुनना तुम, अगर लहरों की आवाज आई तो वो आवाज अंदर नहीं आनी चाहिए। तो हनुमान जी कान फटा मतलब अटेंटिवली हियर। सो हनुमान जी वहां पे खड़े हैं और ऐसा बोलते हैं कि पूरी जगन्नाथपुरी में रात को आपको लहरों की आवाज आएगी, समुद्र के लहरों की, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में जगन्नाथ जी को नहीं आती है, क्योंकि वो हनुमान जी वहां पे खड़े हैं। फिर छठवे है निर्माल्य हनुमान। तो हनुमान जगन्नाथ जी को जो भी भोगा वगैरह लगाते हैं, निर्मल मतलब शुद्ध, और जब यह लगाते हैं उसको तो उसका मीनिंग होता है कि जो बचा हुआ है वो। तो निर्माल्य मतलब ऐसा आपको लगता है कि ये कूड़ा कचड़ा है, मतलब समझो कल भगवान को कुछ हमने हार अर्पण किए थे, कल भगवान को कुछ भोगा अर्पण किया था, और आज कुछ बच गया है, तो कभी कभी उसमें से कभी दुर्गंध आती है हमारी भौतिक इंद्रियों को, बट इस महाप्रसाद भगवान को अर्पण किया है, तो उसको कभी भी कचड़ा नहीं कहते, उसको निर्माल्य कहते हैं। वो शुद्ध है लेकिन कल का है, तो इसलिए कभी कभी हमको लगता है कि वो अशुद्ध है। तो भगवान के किचन के पास में कभी कभी अगर पुरानी चीजें हैं, तो फूल हो, महाप्रसाद हो, या फिर जगन्नाथ जी के लिए चंदन की पेस्ट बनाते हैं, वो अगर कल का बचा हुआ है तो वो जहाँ पे रखते हैं वहां पे निर्माल्य हनुमान है, तो उसका प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये कुछ खराब हो गया है करके, लाइक दे विल ऑफेंड, दे विल डिसरिस्पेक्ट। फिर सातवें है वो है पंचमुखी हनुमान। ये पंचमुखी हनुमान जो है ये और एक सरोवर है, ये जगन्नाथ मंदिर के एकदम गुंडीचा मंदिर के पास में है। इसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। तो इंद्रद्युम्न सरोवर में ये जस्ट दर्शन के लिए हम जब नीचे उतरते हैं उसके पहले बाई तरफ है, ये भी विशेष रूप से प्रोटेक्शन के लिए। ये पंचमुखी की इसका एक स्टोरी है, पहले मैं बता दूं पंचमुख कौन है। तो उत्तर की दिशा में वराह देव है, दक्षिण दिशा में नरसिम्हा देव है, पूर्व दिशा में हनुमान जी है, पश्चिम दिशा में गरुड़ जी है, और ऊपर की तरफ हयग्रीव होता है। तो ये 5 क्यों हैं? तो एक थोड़े रीजनल वेरिएशंस ऑफ रामायण, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन रीजनल वेरिएशंस में बताया कि रावण के एक चाचा जी थे जिनका नाम मही रावण था, और ये मही रावण युद्ध के समय पे
लक्ष्मण और हनुमान जी को पाताल लोक में लेके गए। तो जब पाताल लोक में लेके गए तो उनको कैसे मारेंगे? तब हनुमान जी ने ढूंढ निकाला कि ये महिरावण जो है इसका प्राण वहां पे 5 दिए रखे थे, और ये 5 दिए अगर बुझाएंगे तब ये महिरावण मरेगा, नहीं तो ये मरने वाला है। तो ऐसे अलग अलग कुछ मिस्टिक स्टोरीज रहता है ना। और ये 5 दिए एक साथ बुझने चाहिए। अभी एक व्यक्ति 5 दिशा में 5 दिए हैं, उसको कैसे बुझाएगा? दैट इज द ओनली वे टू किल महिरावण। तो इसलिए हनुमान जी ने उस समय पे ये पंचमुखी रूप रख के और ऐसे करके 5 दिए बुझा दिए, तब जाके महिरावण मरा और फिर ये लोग ऊपर युद्ध करने के लिए आए। तो इसलिए वो पंचमुखी हनुमान है। उसके बाद में एक है फतेह महावीर। फतेह मतलब विक्ट्री। तो ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक राजा थे, और जब जीत के आए युद्ध, तो उन्होंने इस हनुमान जी को एक, मालूम है एंट्रेंस में पतित पावन जगन्नाथ, मालूम है किसी को? एंट्रेंस में एक जगन्नाथ जी है, क्योंकि और एक स्टोरी है वो कि एक मुसलमान राजा थे और परिस्थितिवश वो भगवान के भक्त बन गए, लेकिन हनुमान जगन्नाथ जी के मंदिर में और किसी को एंट्री नहीं है, तो क्या करेंगे? तो फिर जगन्नाथ जी ने एक नया रूप लिया। तो उसका जो एंट्रेंस का गेट है, वो एंट्रेंस के गेट में जगन्नाथ जी है, तो उनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। जिनको जगन्नाथ जी का दर्शन लेना है लेकिन मंदिर में एंट्री नहीं है, उनको दूर से भी जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। तो पतित पावन जगन्नाथ जी के पास में ये फतेह महावीर है, हनुमान जी है, जो एक युद्ध में जब जीते थे तो उसके लिए उनको स्थापित किया। ये पूर्व दिशा में है। फिर है एक सिद्ध महावीर। ये सिद्ध महावीर है, तुलसीदास जी हैं जिन्होंने रामायण लिखा है। तो वो एक बार जब आए थे जगन्नाथपुरी में, तो जिस जगह पे रहे थे तो कहते हैं वहां पे ये सिद्ध महावीर है, और ये गुंडीचा मंदिर के पास में है। और उनके बाएं हाथ में उन्होंने गदा ली है, दाएं हाथ में गंधमादन पर्वत लिया है। गंधमादन पर्वत की भी हमको स्टोरी मालूम है कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए तो सुषेण नाम के एक वैद्य थे उनके पास। तो सुषेण बोले हमको वो संजीवनी करणी नाम की जड़ी बूटी चाहिए। अभी हनुमान जी को नहीं मालूम, तो हनुमान जी बोलते हैं काम करते हैं, पूरा गंधमादन पर्वत चाहते हैं, तो वो लोग देख लेंगे क्या करना है करके। सो वो गंधमादन पर्वत है, और यहाँ पे ये भी रक्षा करते हैं। और एक है, इनका नाम है तपस्वी हनुमान। तो ये तपस्वी हनुमान ये मंदिर के उत्तर गेट पे है। तो इनकी बहुत अच्छी स्टोरी है। इनके 8 हाथ है, और 8 हाथ में से 4 हाथों में इनके पास चक्र है, और बाकी 2 हाथों से ये नमस्कार कर रहे हैं भगवान को, और बाकी 2 हाथों से ये भगवान का नाम ले रहे हैं। तो इनके पीछे एक स्टोरी है। इनके पीछे ऐसी स्टोरी है कि जगन्नाथ जी को एक बार हनुमान जी को बुलाना था, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को बताया कि आप जाके हनुमान जी को बुलाइए। तो सुदर्शन चक्र जाके बोले हनुमान जी को आपको बुलाया है, तो हनुमान जी जाने लग गए। तो बहुत जल्दी फास्ट सुदर्शन जी पहले आ गए, और सुदर्शन जी उस जगन्नाथ मंदिर को, उनको क्या लग रहा है मैं पर्सनल वेपन, पर्सनल सेवक या पर्सनल मैं हथियार हूं जगन्नाथ जी का, कृष्ण भगवान का, तो मेरा पोजीशन बहुत हाई है करके। तो जल्दी से फट से आ गए, और जगन्नाथ मंदिर को ऐसे गोल 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 कोई चक्कर लगा रहे थे। हनुमान जी कुड नॉट गो इनसाइड। हनुमान जी को बुलाया है, लेकिन उनको थोड़ा घमंड था कि मैं भगवान के बहुत पास में हूँ, तो हनुमान जी को अंदर जाने के लिए नहीं दे रहे। तो हनुमान जी को समझ में आया ये भी तो वैष्णव है, ये भी तो भगवान के भक्त है, तो इनको मैं ऐसे डांट के या इनसे लड़ के अंदर नहीं जा सकता। वैष्णव से लड़ के मैं भगवान के पास में अगर जाऊं तो मैं क्या भगवान को तकलीफ दूंगा मैं। सो हनुमान जी बिकेम हम्बल। तो हनुमान जी वहीं बैठ के भगवान को प्रार्थना करने लगे, तो कि मैं भी कैसे आऊं अंदर करके। तो भगवान उनकी इस नम्रता से खुश हो गए कि इन्होंने सुदर्शन चक्र से लड़ाई नहीं की, इन्होंने उसे झगड़ा नहीं किया, बल्कि हम्बल बन गए और हाथ जोड़ के खड़े। तो उनको 6 और हाथ भगवान ने दे दिए। उसमें से 4 हाथों में चक्र है, 2 हाथ से नमस्कार कर रहे हैं, और 2 हाथ से श्री राम नाम जप कर रहे हैं, राइट। और ये सब होने के बाद में तो इनका तो काम हो गया, हनुमान जी को तो सब कृपा मिल गई। फिर इनका क्या हुआ, सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, जिन्होंने दूसरे वैष्णव को तकलीफ दी है। सुदर्शन चक्र को जगन्नाथ जी इतने गुस्सा हो गए, बोले तुम मेरे पास में रहते हो लेकिन तुम मुझे कभी समझ नहीं पाए, तो मैं तुमको शाप देता हूँ, यू विल लूज योर फॉर्म एज सुदर्शन चक्र एंड यू विल जस्ट बिकम ए
एक कॉलम, एक खंबा। इसलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है इनके पास में देखेंगे तो चक्र के रूप में चक्र नहीं है, वो खंबे के रूप में। तो कभी सोचा आपने कि अरे हमेशा कृष्ण के उंगली में हमेशा वो चक्र रहते हैं, जगन्नाथ जी के पास खंबे के रूप में क्यों है? बिकॉज इन वन सेंस ही ऑफेंडेड हनुमान जी। तो कृष्ण ने उनका रूप ले लिया, उनको बोला ठीक है आप रहिए। और एक बहुत सुंदर स्टोरी है कि कृष्ण द्वारका में जब थे, नॉट जगन्नाथ बट द्वारका में जब कृष्ण है, तभी उन्होंने गरुड़ जी को बोला कि आप हनुमान जी के पास जाइए और बोलिए कि कृष्ण ने उनको बुलाया है करके। तो गरुड़ जी आए, हनुमान जी अपने ध्यान में राम राम कर रहे हैं, बोले कृष्ण ने आपको बुलाया है। हनुमान जी ने आंखें भी नहीं खोली, राम 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 करे। अरे सुनते हो कि नहीं, राम जी ने आपको बुलाया है, कृष्ण ने आपको बुलाया है द्वारका में, राम 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 राम। तो थोड़ा एक मालूम है, जब भगवान किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं ना, जाओ मेरे लिए सेवा करो, तो थोड़ा उसमें सुपीरियर भगवान का ऑर्डर कैरियर हो मैं, राइट। तो थोड़ा जगह हनुमान जी को ऐसे धक्का लगाया हुए हैं, अरे भैया सुनो, कृष्ण द्वारका में बुला रहे हैं आपको। हनुमान जी राम राम करके उसकी पूछती टप करके मारा उसको, गरुड़ जी को मारा। सो द क्वेश्चन इज हाउ इज इट पॉसिबल कि गरुड़ जी जिनके ऊपर हमेशा भगवान वाहन के रूप में यूज करते हैं, उनको व्हाई इज हनुमान इन वन सेंस बीटिंग हिम, राइट? क्यों? क्योंकि गरुड़ जी फेल्ट ही सुपीरियर। सी व्हेन समबडी इज चैंटिंग ना, कोई भगवान का नाम ले रहा है, भले ही आप भगवान के ऑर्डर कैरियर हो, आप भगवान का संदेश कैरियर हो, बट व्हाट इज इट डूइंग? He's not wasting his time, he's chanting though. And deep में इतना मेडिटेशन है। एक बार बोला, अरे सुना कृष्ण भगवान बुला रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया, यू शुड रिकॉग्नाइज। वो समझ में नहीं, एब्जॉर्ब, रिचुअल नहीं कर रहे हो। सो उनको उस एब्जॉर्प्शन में से बाहर निकालने सोचा। तो गरुड़ जी जहां कहीं भी हनुमान थे, उनकी पूछ, आजकल ड्रोन अटैक हो गए, अरे उड़ के सीधा द्वारका में गिरे जहां पे कृष्ण थे, और कृष्ण ने उनको बोला जाओ बुलाओ करके। तो वहां पे आके बोले क्या हुआ गरुड़ जी? बोले नहीं मैं तो गया और मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ तो हुआ। बट मैं द्वारका में पहुंच गया। तो कृष्ण बोले दैट मीन्स यू नो ही इज एब्सॉर्ब्ड। बिकॉज 3 बार बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो क्या नाम है? राम। तो माई रिक्वेस्ट इज नाउ यू गो एंड टेल हिम राम इज कॉलिंग। सो अभी भगवान जब बोलते हैं तो ना भी नहीं बोल सकते, और एक बार पहली प्रोजेक्टर इमोशन हो गया है, so it is again okay, but this time it makes sense because he was chanting Ram's name and Krishna is saying tell him Ram is calling. तो अभी हनुमान जी बोलते हैं हरे कृष्णा हरे राम, राम बुला रहे आपको। इमीडिएटली मेडिटेशन से बाहर आ गए और इमीडिएटली फास्ट चले गए। दिस टाइम हनुमान जी रीच बिफोर गरुड़ा। तो गरुड़ संदेश देके जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी राम बुला रहे हैं, तो आई हैव टू बी देयर फर्स्ट। तो इमीडिएटली चले गए एंड देन दैट टाइम कृष्णा, रुक्मिणी एंड बलराम जी वेर देयर इन द्वारका। बट क्योंकि कृष्ण ने बोला राम बुला रहे ऐसा बताया, तो जब हनुमान जी जब आए तो कृष्ण बिकेम राम, बलराम जी ही बिकेम लक्ष्मण, and Rukmini Devi became Sita Devi, and they gave that very beautiful darshan to Hanuman ji, and Hanuman ji was very happy. So हनुमान जी का जो एब्जॉर्प्शन है राम नाम में, एक बार गरुड़ जी के साथ उनकी थोड़ी नोक-झोंक हुई है, और एक बार सुदर्शन चक्र के साथ नोक-झोंक हुई है। एंड सुदर्शन चक्र एंड गरुड़ जी both are very dear to Krishna, but as far as his absorption goes, it seems that he won over Garud ji, he won over Sudarshan ji, right? So Hanuman ji is really, really very sweet, and Hanuman ji is always ready to do seva, and Hanuman ji is always absorbed in the holy name. महाभारत में एक स्टोरी आती है, ये लोग जब उत्तर दिशा में गए, भीम ऑल द पार्टनर्स, राइट? तो एक दिन एक सौगंधिका नाम का 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल रहता है, सुवर्ण रंग का। सो द्रौपदी ने सुना था कि ये उत्तर दिशा में हिमालयों में मिलता है। So one day she told Bhim, I wanted Saugandhika फूल करके। So he said okay. So then he was going north searching. तो बीच में हनुमान जी बैठे थे, तो उन्होंने पहचाना नहीं, जैसे हम भी वैष्णव को नहीं पहचानते हैं, राइट? तो उनकी पूछ थी बीच में, तो ले वानर चल पूछ निकाल। He is absorbed.
ए वानर चल पूछ निकाल, अगर तुमको जाना है तो जाओ, और अगर नहीं जाना है, जनरली नहीं रहता ना पैर अगर किसी का तो उसके ऊपर से ऐसे लांगी नहीं, दिस वुड नॉट गुड एटिकेट। तो बोले अगर जाना है तो जाओ, और नहीं जाना है तो तुम करो बाजू में, तुम्हारी अगर इतनी ताकत है तो। बोले वानर तो वानर ही है, राइट। एंड देन भीम कॉट होल्ड ऑफ दैट पूछ एंड ट्राई टू मूव इट, बट कुड नॉट। तो कुछ समय बाद समझ में आया कि जिनकी पूछ को मैं हिला नहीं सकता must be somebody special because I am Bhim. I can do a lot. Then he said, "Who are you?" Then he said, "I am Hanumanji, and I was testing you. So if you want to serve Krishna, if you want to serve Ram, you won't have pride. कभी भी गर्व, that is not a very good thing to have, especially if you want to serve Krishna. तो कृष्ण को थोड़ा प्राइडलेसनेस से ज्यादा लगाव है. There's something about प्राइडलेसनेस उनको अच्छा लगता है. तो गर्व अगर हो हमको हमारे भगवान के पास में हम, जैसे गरुड़ जी को लगा, सुदर्शन चक्र को लगा, या हमको अगर लगे कि भगवान ने मुझे पर्सनल मैसेंजर बनाया है, मैसेज दिया है, तो मैं भगवान का पर्सनल मैसेंजर हूँ, वॉट एवर इट इज, राइट. बट अगर उसमें बदबू आई, अगर गर्व की कि मैं स्पेशल हूँ, मैं इनसे हटके हूँ, देन कृष्णा विल मेक यू हम्बल. So humiliation will happen before humility. So better to become humble without humiliation. So ये ऐसा है. फिर उसके बाद में और एक है, एक सिरुली हनुमान है. एक सिरुली नाम का एक गांव है जिस 33 किलोमीटर्स पुणे टू भुवनेश्वर, पुरी टू भुवनेश्वर जो रोड है उसमें आता है. सो वहां पे ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने लंका का युद्ध लड़ने के बाद में इस तरफ आए वो थोड़ा, और जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा थी, तो वहां पे रुक गए वो. और वहां पे जो मूर्ति है, ऐसा बोलते हैं कि उनकी जो बाईं आंख है, लेफ्ट आई है, वो 33 किलोमीटर से जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो चक्र है उसके ऊपर रहती है वो. और जो राइट आंख है वो लंका की दिशा में है. वापिस अगर आया तो देख लेना. So one eye is on Lanka and one eye is on Jagannath Puri flag. तो वहां पे वो स्थित है. तो ऐसे जो हनुमान जी हैं, ये जगन्नाथ पुरी में भी सेवा कर रहे हैं, राम जी की हमेशा सेवा करते हैं. लेकिन जब पहली बार राम जी से मिलना हुआ इनका, बहुत ही स्वीट स्टोरी है, विच इज वेरी इंस्ट्रक्टिव फॉर अस. तो सुग्रीव वाली से डर के माल्यवंत पर्वत पे रह रहे हैं, और उस पर्वत से नीचे भी नहीं आते, क्योंकि नीचे आएंगे तो मारे जाएंगे. तो कोई भी अगर उस एरिया में कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी अगर अनजाना व्यक्ति आता है, तो सुग्रीव को लगता है वाली ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए. सो ये दो नव युवक दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग, उनके शोल्डर्स वगैरह ऐसे हैं क्षत्रियो जैसे, लेकिन कपड़े पहने हैं वनवासी के. थोड़ा मिसमैच था. उनकी जो चाल है वो रॉयल है, साधुओं की नहीं है उनकी, लेकिन कपड़े पहने हैं सैफरन. थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था. तो ऐसे जब गड़बड़ लगता था तो सुग्रीव को बहुत डर लगता था. बोले वाली ने कुछ तो गड़बड़ किया है करके. तो हनुमान जी को बोलते जाके देखो कौन है करके. तो भी कैसे जाएंगे, तो हनुमान जी एक रूप बदल के आए. हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप लिया, और राम और लक्ष्मण सामने से आ रहे हैं. तो बहुत अच्छे सुशिक्षित सुसंस्कृत ब्राह्मण के रूप में बहुत अच्छे मीठी बातें की उन्होंने, कि ऐसा है वैसा है, तो आप कौन है करके. तो राम बोलते हैं लक्ष्मण को, तुम बताओ मैं कौन हूं करके. सो लक्ष्मण, सो द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू राम. राम जी को सवाल पूछा था कि आप कौन है और इस जंगल में क्या कर रहे हैं, और लग नहीं रहे आप वनवासी जैसे लग नहीं रहे. बट let him sit first. तो राम जी को सवाल पूछ रहे हैं हनुमान जी, और हनुमान जी बेस बदल के आए. क्यों? सुग्रीव ने पूछ के आओ कौन है करके, भाई मुझे मारने के लिए नहीं आए. तो हनुमान जी बेस बदल के गए और बोले, बहुत अच्छे से एकदम संस्कृत भाषा में बात की उन्होंने, और बोले कि तो आप कौन है. तो राम जी डिड नॉट आंसर ऑन ये. जनरली ऐसा नहीं होता है ना, इनको पूछेंगे तो यार राम जी लक्ष्मण बोलते बताओ. तो लक्ष्मण जी बोलते हैं ये हैं कौशल देश के राजकुमार, और
ये मुझे भाई मानते हैं लेकिन मैं इनका दास हूं. सो ही नेवर एक्सेप्टेड हिज ब्रदर, ही सेइंग आई एम आल्सो सर्वेंट ऑफ राम. ठीक है. तो सवाल उठता है, हनुमान जी राम जी को पूछ रहे हैं आप कौन है, तो उन्होंने आंसर क्यों नहीं किया, जवाब क्यों नहीं दिया? तो हनुमान जी ने राम जी को पहचाना नहीं, लेकिन क्या राम जी ने भी हनुमान जी को पहचाना नहीं? ऐसा हो सकता है क्या कभी? राइट. सो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में भगवान है. भगवान तो सबको जानते हैं, लेकिन अगर भगवान सबको जानते हैं तो भगवान हनुमान जी को भी जानते हैं. तो भगवान को बुरा लगा, ये मेरा दास है, ये मेरा नित्य दास है. हनुमान जी हमेशा राम जी के दास है. आज दास ने मेकअप किया है, ही इज ट्राइंग टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम राम. तो राम जी ने तो चेंज नहीं किया, राम जी का तो चेहरा वही है, लेकिन क्योंकि हनुमान जी पहचानने के लिए आए सुग्रीव की तरफ से, तो उन्होंने अपना भेष बदला है, इन्होंने अपना भेष बदला है. तो जिसने भेष बदला है उसको हम पहचान नहीं पाएंगे. ऐसा होना चाहिए कि जिसने भेष बदला है वो किसी को पहचान नहीं सकता, ऐसा होना चाहिए. फर्स्ट ऑप्शन, मैं अपना चेहरा बदलता हूं और दयालु राम प्रभु ही है, एंड देन आई गो टू दयालु राम प्रभु एंड से हु आर यू. तो मैंने अगर चेहरा मेरा बदला है तो मैं इनको नहीं पहचानूंगा कि ये मुझे नहीं पहचानेंगे. जनरली इट हैपेंस कि ये मुझे नहीं पहचानेंगे. बट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन रामायण, हनुमान जी ने अपना चेहरा बदला है, राम जी ने अपना चेहरा नहीं बदला है. लेकिन हनुमान जी ने अपना चेहरा बदल के सामने जब राम के सामने जब गए तो राम को हनुमान जी पहचान नहीं पाए. इसका मतलब है जब भगवान के सामने हम जाते हैं तो हमको अपना रूप बदल के नहीं जाना चाहिए. क्यों? अगर हम हनुमान जी से हमारा रूप बदलेंगे, मतलब वी प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स, हु आर वी एक्चुअली? सर्वेंट. बस सिंपल. दिस सर्वेंट, दैट सर्वेंट, गुजराती सर्वेंट, मराठी सर्वेंट, दैट्स ओके. बेसिक है सर्वेंट. अगर हम सर्वेंट को मूड को छोड़ के भगवान के सामने जाते हैं, हम भगवान को पहचान नहीं पाते. तो आज जो दुनिया में बोलता है ना ये भगवान है क्या, इज कृष्णा एक्चुअली गॉड? व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ के, जब दास अपनी आइडेंटिटी छोड़ के जब भगवान के पास जाता है ना, तो दास भगवान को पहचान नहीं पाता, भगवान हमेशा हमको पहचानते हैं. सो कृष्णा इज ऑलरेडी सेइंग कि यू आर माई सर्वेंट. ही इज सेइंग व्हाट इज दैट? ममई वामशो जीव लोके, राइट? सो कृष्णा हैज ऑलरेडी पुट हिज क्लेम ऑन अस, मम्मा एव अंश, कि आप मेरे अंश है. तो पिताजी ने पहले बोल दिया आप मेरे बेटे हैं, आप मेरी बेटी है. लेकिन बेटा बेटी मान नहीं रहे कि आप मेरे पिताजी. अर्जुन डिड नॉट से आप ही है करके, राइट? फर्स्ट कृष्णा सेज यू आर माइन, एंड देन अर्जुन सेज पवित्रम परमम भवान. सो पिताजी हमेशा पहले बताते हैं कि तुम मेरा बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो. लेकिन बेटा बेटी को बहुत समय लगता है ये स्वीकार करने के लिए, अरे मैं भूल गया था कि आप मेरे पिताजी है करके. सो इसलिए हनुमान जी की वो जो स्टोरी है ना, कि वो भेष बदले हैं लेकिन वो राम जी को पहचान नहीं पाते हैं, राम जी को बहुत बुरा लगता है. आप मेरे जन्म जन्म के साथी हैं, आप मेरे जन्म जन्म के दास हैं, और इस बार जब आप मेरे को मिलने के लिए आए तो अपना भेष बदल के आए. इसलिए जब उन्होंने पूछा आप कौन है, तो राम जी ने जवाब ही नहीं दी. नो, आपके घर में कोई सेवक है, ड्राइवर है, वटेवर, राइट? और एक दिन वो अगर आपको आगे पूछे आप कौन है करके, you don't even feel like replying. How can you ask this question? So why Ram did not answer? Why he called Lakshman to answer? We felt very bad. और फिर जब इन्होंने बताया कि ये लक्ष्मण है, राम है करके, तो हनुमान जी को समझ में आया कि नाउ देयर इज नो डेंजर. वो सुग्रीव को जो डेंजर लग रहा था, वाली ने भेजा, वो चला गया. तो इन्हें हनुमान जी को चेंज उन्होंने निकाल दिया. फिर उन्होंने बताया हनुमान को करके टू लाई नो दैट. सो इसका मतलब है हम जब भगवान के सामने जाते हैं तो द लास्ट लेसन टू लर्न फ्रॉम टुडे एंड फ्रॉम हनुमान इज नेवर एवर प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स. सो हु एम आई? तव भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्येव स्मरण लोकनाथ. तो एक कुलशेखर महाराज है, वो 7 बार बोलते हैं तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इव स्मर लोकनाथ. हमेशा मुझे कैसे याद रखना हे भगवान कि मैं भृत्य का भृत्य का सेवक का सेवक का सेवक का सेवक, दास 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 हो. पावर ऑफ 7. सो हनुमान जी को हम आज ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप के स्वामी आज हमने हमारे घर में बुलाए हैं,
और आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुलाए हैं, तो थोड़ा आप हमको कृपा देना, आप हमको सही भावना देना, आप हमको सही मूड देना, ताकि वी शुड नेवर एवर गो विथ ए डिसगाइज। चेहरे को बदल के कभी भगवान के सामने नहीं जाना है। बाहर जब जाते हैं तो चेहरा बदलना इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो जरूरी भी होता है। एकदम ट्रांसपेरेंटली जाएंगे तो विल गेट स्लॉटर्ड, राइट? इन दिस वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दैट। पर जब बाहर से जितना भी डिस्गाइज वगैरह करके जब घर में आते हैं ना, तो भगवान के सामने जब जाएंगे ना, तो सारा वो डिस्गाइज सब निकाल के, राइट, नॉट फिजिकली बट वी शुड गिव अप ऑल अवर आइडेंटिटीज। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब छोड़ के भगवान के सामने जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो भगवान, भगवान प्रभु अहम दासम, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। इस सेवा में, इस भावना में अगर हम जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे तो जगन्नाथ जी विल बी वेरी हैप्पी विद अस, और उनकी वो जो स्माइल है वो और बढ़ती जाएगी। इट इज ऑलरेडी स्माइलिंग ह्यूज। एंड यू नो ब्रिटिशर्स दे कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। सो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पे गैजेट आता था, गैजेट मतलब दे विल राइट डाउन सम इवेंट्स, तो उसमें दे हैव डिस्क्राइब जगन्नाथ एज हैविंग ए ब्लडी स्माइल। खून का रंग है वो, लाल रंग। सो फॉर देम दे नेवर अंडरस्टूड जगन्नाथ because you know his form is different, his hands are like this, and they saw a bloody mouth. No, bloody not in a derogatory sense, but red color. So he has a bloody mouth, and every year, from nowhere, without any advertisement, without any invitation, 15 lakh people come. उनके लिए एक रथ बनाएंगे, रथ पे उनको खींचेंगे, और फिर उनको 8 दिन बाद वापस रिटर्न रथ यात्रा होती है। तो कहाँ से लोग इधर क्यों आते हैं? तो दे जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड, ब्रिटिशर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड, and because they could not understand Jagannath, they formed a new word in the English dictionary for something that is huge. It's juggernaut. So in English there's the word juggernaut. तो कहाँ से आया juggernaut? It's a British invention. Because उनके लिए इतना बड़ा रथ और 15 लाख लोग ऐसा रथ को खींच रहे हैं, और उसके ऊपर वो जगह, तो anything huge which they cannot understand, juggernaut, right? So it's so simple to understand कि कृष्णा इज स्माइलिंग, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और हाथ ऐसे क्यों हैं? जिस कल्चर में आलिंगन करना इज पार्ट ऑफ लाइफ, you know, when we meet, friends meet, we hug each other, right? But when people are not from this culture, and where people, when they meet each other, how are you? Right? So if this is the way you meet people, you can never understand Jagannath's hands like this. Right? Then you feel Jagannath should have had legs, right? But when you're part of this culture where you go and you embrace and you hug each other, then you understand, oh, their God is also like this. Their God is also like this. Come and hug me, right? So, you know, if we are disguised, if we give up our identity as Krishna's servant, and we belong to some other culture where we have given up the embracing culture and the hugging culture, and we are into shaking hands culture, then Jagannath becomes a very big mystery. And then you just end up coining a new word, saying I just don't know what it is, and I don't know what's going to happen and all that. But if you are in the right mood, then Jagannath is so happy, Jagannath is so smiling, Jagannath is so inviting, right? The only deity, the main deity in any temple, कोई भी मंदिर में, जितने भी मंदिर है भारत में, मंदिरों से भरा हुआ देश है ये, लेकिन एक ही ऐसा मंदिर है जिसकी मुख्य मूर्ति मंदिर से बाहर आती है भक्तों को दर्शन देने के लिए। How somebody, as I'm saying this, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, काश ऐसा तिरुपति पर भी हो जाए। 22 hours of queue, and you know, so many other temples, Badrinath temple, Kedarnath temple, where you have to stand in queue. But they are saying, no, you know, that kindness and that eagerness to meet devotees is not so much in us. We are stationary. You want our darshan, you stand in queue. But there's this one person called Jagannath who says, I would not want you to stand in queue. Here I come, right? And he comes out, and you know, he has a very beautiful form, calling out to anyone and everyone. कोई भी हो, कौन सी जाति का है, उसे शराब पी है, मांस खाया, no considerations, right? He's just available to give his darshan and purify. And what if somebody goes to that place where they give Mahaprasad of Jagannath? It's called Anand Bazar. When you go there, do they ask you, have you eaten something wrong today? What is your name? You know, no. She's so innocent.
No, she said, in that park, they never ask your name. They don't ask where are you from, how much money in your bank account, are you educated, do you have a visa, right? Or do you speak American accented English, or do you speak British accented English, or do you speak Hindi English, whatever. Nothing to do with your body. पैसा कितना है, पढ़ाई कितनी की है. Can I get some Jagannath Prasad? Yes, Jagannath ji is feeding even today. In this LPG crisis, Jagannath ji is feeding 40,000 pilgrims every day. Why? Because he knew this kind of crisis will keep on happening. Today LPG crisis, tomorrow some other crisis. So even today, wood-fired stove पे cooking होता है, right? So even if you go today, where so many big restaurants may not offer you food, but Jagannath ji is ready to feed you. So Jagannath ji is still, quite eager to help his devotees and eager to serve his devotees. So Jagannath ji is so kind, Jagannath ji is so nice. But if you don't have the right understanding, then we don't understand Jagannath. So मुखौटा किसने लगाया है? Disguise किसने लगाया है? तो जिसने लगाया है उसको छोड़ना पड़ेगा. Right? So we can pray to Jagannath ji today that whatever disguise, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम. जो भी मैं सोच रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बाहर की दुनिया में I think it's necessary. You need to put on a mask, right? You can't be what you are naturally. But at least in front of Jagannath, at least in front of Krishna, when we come, दहलीज बोलते हैं उसको, right? Room का जो border है. So there we stop before we enter and we say, "Oh Krishna, I just want to be a servant of servant of servant. I don't want to be like Hanumanji, who changed with these guys and did not recognize you well. You became so angry. Hey, he's not recognizing him. मैं जवाब ही नहीं दूंगा मैं जा. लक्ष्मण तो जवाब दे." So we should never make Jagannath ji angry. Should always be happy. And I'm sure that Mataji and Rajiv and sometimes she will visit and sometimes her mother will also be there to help. But they will keep Jagannath ji happy. And may Jagannath ji be very, very happy with them. And may we continue to get Jagannath ji's kripa at their home. So whenever we come, Mataji, we read some prasada Jagannath ji ka. Yes, yes. तो जगन्नाथ जी का स्पेशल महाप्रसाद हमको थोड़ा तो चाहिए, तो हमारा कुछ भला होगा. आप तो सिर्फ चटनी पूरी खाते हो जब आते हो तब. Whatever you view, guys. આટલો ભોજન બનાવું ને એમાંથી બસ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા તે તો ગ્રીન ચટણી અને પૂરી. અરે મેં ઊંધિયું બનાવ્યું હતું, બસ મને કઈ બધું કેટલું બધું હતું, ફરસાણ બધું કાંઈ જ ન ખાય, ખાલી ચટણી ને પૂરી. No, but मैं आपने आधा बताया, आपने ये नहीं बताया कि वो चटनी हमने कितनी अच्छे से बनाई थी. She did not tell. She is not. That chutney is so divine, my God. It's tasty, green chutney. You should all eat that chutney. If you eat that chutney with an all the surti undi ho ya Ahmedabadi undi ho, or thoda, it will become. But thank you so much, Mataji, for all your. So much. She is so enthusiastic to serve Jagannath. You're saying, karenge, right? So thank you so much, and praying to Shri Radha Gopinath ji, Shri Gaur Nitai, Srila Prabhupada. On this auspicious day of Hanuman Jayanti, Jagannath ji has come to your home. May they bless you more and more, and may you serve them more and more. And seeing your example, may all of us also learn how to serve Jagannath ji more and more. आप हमेशा बहुत धन्य करते हो, बहुत प्रभु जी. Oh, it's all the effect of the chutney puri. So, if you continue feeding me chutney puri, then I'll continue to do this. No chutney puri will stop. श्री माता जी, आपको पता है ये चटनी पूरी क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसका कुछ कनेक्शन है जगन्नाथ पुरी के साथ. Puri. पूरी. Now people are asking, is there chutney today? So that I think, she'll have to find some spare time to make that. With today's busy schedule, I think she did not get time to make that. हम अभिनंदन व्यक्त करेंगे प्रभु जी का हमारे पारंपरिक विधि के अनुसार प्रेम से 3 बार हरि बोल. Thank you and sorry I lost track of time. अभी देखा मैंने. नहीं प्रभु जी बहुत अच्छा. बहुत अच्छा लगा, समय का पता नहीं चला. लाइफ में तो बाकी तो सब काम तो है ही, लेकिन अभी ऐसा तो कब मिलेगा मौका. आज आपने कृपा कर दी. Thank you. बहुत अच्छा आपने सब बताया हनुमान जी के बारे में. आज सब बहुत अच्छा बनाया. Thank you. मुझे तो सिर्फ वो बेड़ी वाले हनुमान जी और वो कान फटा बस वो 2 ही पता थे. जगन्नाथपुरी गए थे तो तपस्वी हनुमान
और सिरोली पांच मुखिया और पंचमुखी पंचमुखी, हाँ वो सब मतलब वहाँ पे Yes. सिर्फ यही 2 दर्शन हुए थे और साक्षी गोपाल गए थे। जो मेरे लगते तो अभी आपने हमें सब जगन्नाथपुरी के बारे में सुना। जगन्नाथ जी जब पुरी में रहते हैं तो कहते हैं कि वो द्वारका में रहते हैं और यात्रा के समय वो द्वारका से वृंदावन जाते हैं। तो आपको वृंदावन के बारे में कथा सुननी है थोड़ी। आए वृंदावन से ब्रजवासी आए कथा सुनाने के लिए। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा द्वारका से वृंदावन कच्चू हरे कृष्णा, जय श्री राधे। सबसे पहले तो प्रभु के वंडरफुल You insisted me, so I did. no. See, knowledge happens when you sit down, right? Then it comes down. When you're sitting at an equal level, it does not happen. I need to shift. I don't want to. No, not for adults, for youngsters. Oh, so I'm an elder now. I want him to speak just to make him happy. हरे कृष्णा, जय श्री राधे। बस प्रभु ने वो कि हम ब्रज में कहते हैं बलिहार बलिहार, राइट? क्या कहते हैं? बलिहार। सब प्रभु ने ऐसा गदगद कर दिया। और मैं यही सोच रहा था प्रभु की बात की हाउ वी क्रिएट द मुखौटा, राइट? हम मुखौटा पहनते हैं और फिर एक्चुअल ठाकुर जी है जो वो घूंघट खोलने आते हैं। तो ठाकुर जी आए, राम जी ही हनुमान जी के समक्ष आए और हनुमान जी को बोला कि मैं तो तुम्हें जानता ही हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब ठाकुर जी को ज्यादा अपने आप का मुखौटा भी पहन लेते हैं, क्योंकि राम जी नहीं पहनेंगे, लेकिन एक छलियो ठाकुर है, वाह को नाम है गिरधर लाल, वो पहन लेते हैं। तो एक बार वो ब्रज में थे इन वृंदावन, एंड some gopis have come to him and asking him कि why are you troubling that particular saint who is sitting in the corner? He is just crying for you and you are just not revealing your identity to him. That saint was blind and Krishna had found him on the outskirts of Vrindavan and he was just asking, अरे वृंदावन कहाँ है, वृंदावन कहाँ है, ब्रज कहाँ है? तो कृष्ण उसका हाथ पकड़ के बोला, अब कृष्ण तो गोलोक में भी रहते हैं और अपने इस ब्रज में भी रहते हैं। हमारे लिए अंतर है कि ये ब्रज अलग है, वो ब्रज अलग है, कृष्ण के लिए अलग नहीं है। तो कृष्ण उसका हाथ पकड़ के बोला कि यही वृंदावन है, दिस इज वृंदावन, यू कम हियर। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, बट कृष्ण इज नॉट रिवीलिंग दैट ही इज कृष्ण। ही इज टेलिंग, मोको नाम, मेरा नाम तो कन्हैया लाल है, मैं यही रहता हूं। अब कन्हैया लाल वास्तव में कन्हैया लाल नाम। So then Krishna starts thinking, what's the identity of that person? This person was in South India. And he was a great Pandit. But somehow he got lost. And when he got his buddhi back, he thought that I should run to Vrindavan. In the middle path, he again got attracted to beauty from his past samskaras. And then he realized that, क्या बोलते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. He did a very brave step. He took the shalaka and gouged his eyes. अपने आप को अंधा बना दिया कि मुझे दिखे ही नहीं. तो कौन था वो संत? बिल्व मंगल ठाकुर, लीला शुक. अब उसके बारे में कृष्ण सोच रहे, क्योंकि गोपियां बोल रही कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या उनकी पीड़ा देखते हुए कि वो ब्रज आ गए हैं, लेकिन अपने आप को रिवील नहीं कर रहे. अब गोपियों के कहने पर कृष्ण का हृदय पसीज रहा है. अब उनका मुखौटा निकल रहा है और जब वो स्पर्श कर दे बिल्व मंगल ठाकुर को, क्योंकि मुखौटा निकल चुका है ना, तो बिल्व मंगल ठाकुर समझ जाते हैं कि आप कौन हो. स्पर्श से फिर वो कुछ संस्कृत में कहते हैं श्लोक, लेकिन वही भाव को सूरदास जी ने भी लिखा है. अब हम दोहरा सकते हैं साथ में, क्योंकि कृष्ण जब पकड़ लेते तो समझ जाते हैं ये तुम तो वही हो जिनके लिए मैं यहां दौड़ के आया हूं. तो कृष्ण बोलते हैं मैं नहीं हूं. So he says,
हाथ छुड़ा के जात हो, हाथ छुड़ा के जात हो, निबल जान मोही, निबल जान तू मोही। हाथ छुड़ा के जा रहे हो क्योंकि तुम मुझे क्या मान रहे हो? निबल। हृदय से जब जाओगे, निर्णय सी जब जाओ, सबल जान मैं तो ही। जान अभी तो मेरा हाथ छुड़ा के जा रहे हो क्योंकि तुम मुझे क्या मान रहे, मैं क्योंकि तुम सबल हो, मैं निर्बल हूं, है ना? लेकिन वास्तव में तुम्हें सबल मैं तभी मानूंगा जब मेरे हृदय से चले जाओगे, तब कृष्ण रह ही नहीं पाए। सो ये आंख मिचौनी का गेम चलता ही रहता है, पर जस्ट उसको हम हल्का सा स्पर्श करेंगे प्रभु के, उससे स्फुरण हो गया कि जगन्नाथपुरी में वो आंख मिचौनी चलती रहती है। और मैया लोग अपने पुत्रों के साथ तो खेलती हैं आंख मिचौनी, उसको बड़े बड़े नाम भी देते हैं। कौन सा गेम खेलते हैं मैयागढ़? हाई, बच्चों की करते हैं ना, नॉट हाइड एंड सीक, वो छुपन छुप, क्या बच्चों को करते हैं ना। It's called peekaboo. It's called peekaboo. We have some secret conversation about peekaboo. So, what is peekaboo? The kid doesn't have, until 2 years of age, permanent object memory. It's called object permanence is not there. So every time you do it, face lights up, isn't it? However, after 2 years of age, you do it. बोले हो गया साइड में. It doesn't create that impression. Krishna plays that. Actually, Krishna has the divine peekaboo because every time he sees devotees, he feels happy and the devotee feels happy. So they too seem to not have object permanence, right? कृष्ण जब गोपियों से भी मिलते हैं तो वी से पूर्व राग. पूर्व राग मीन्स मिलने से पहले का राग. अरे अभी तो मिले थे 10 मिनट पहले, अभी एक लीला करके आए हो, तो ये बार बार क्या? It's a divine peekaboo and Krishna orchestrates that. कैसे? स्नान यात्रा में, है कि नहीं? जो स्नान, अभी जगन्नाथ आए हैं तो स्नान यात्रा में यही तो होता है. स्नान कराते बुखार आ जाता है ठाकुर जी को, गायब हो गए, ढूंढते रहो मुझे. ये क्या चल रहा है? ये ओझल. 15 दिन दर्शन नहीं है. 15 दिन दर्शन है ही नहीं. जब स्नान यात्रा करेंगे, अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा पे स्नान यात्रा होगी, नहलाएंगे, बुखार आ जाएगा उनको. और हमारे डॉक्टर अलवा ने जाके चेक भी किया है, वास्तव में उनका पारा गर्म ही रहता है. 15 दिन बाद आएंगे तो ये आंख मिचौली क्या, बुखार क्या? वही भाव को जागृत करने के लिए. हम भी, प्रभु ने बोला विज्ञान, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, तो डीटीज के साथ भी हम बांके बिहारी ब्रज में तो झलक दर्शन करते हैं कि कोई ऐसा भक्त नहीं आ जाए बांके वाले तुम साइड में हटो मैं जा रहा हूं इनके साथ, तो ऐसा कोई भक्त नहीं आ जाए, इसे झलक करते हैं. लेकिन उस झलक दर्शन में भी पीकाबू इफेक्ट है. एवरी टाइम यू फील नव 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 डिवाइन पीकाबू इफेक्ट. फॉर व्हाट? टू इंक्रीज दैट काइंड ऑफ. चटनी आप बोल रहे थे, अब चटनी को बनाने के लिए कुछ घुमाना पड़ेगा. अब चटनी तो नहीं, हम ब्रज में रबड़ी बनाते हैं अधोटा दूध की, तो अधोटा दूध को ऐसे स्लो कुकिंग पे घुमाते घुमाते घुमाते, तो दैट्स द चर्निंग विच इज हैपनिंग. और ये हमेशा बढ़ती जाएगी. तो इसलिए भक्ति में ऊब नहीं सकते अगर हम सही मार्गदर्शन में, प्रभु जैसे भक्तों के मार्गदर्शन में तो ऊबेंगे नहीं. क्यों? क्योंकि ठाकुर जी डिवाइन पीकाबू इफेक्ट चर्न करते ही जाएंगे. और डीटीज के घर पे आने पर तो ये एक मौका ही है. सुलाओ और फिर दर्शन करो, फिर सुलाओ फिर दर्शन करो, फिर अलग ड्रेस पहनाओ, सामने वालों से बोर नहीं हुआ? नहीं. क्यों? विच इफेक्ट? DTE, डिवाइन पीकाबू इफेक्ट. जय जय श्री राधे. जय